آداب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین اردو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید وہاب الحق۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر۔ میونسپل کارپوریشن کی اخترالزمان ناصر لائبریری کی خستہ حالی پر لائبریری کے روبرو کیا گیا شدید احتجاج۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ بازار میں کھجور کے اقسام مہیا، آج سے تراویح کے ساتھ ماہ سیام کا آغاز۔ اور الفلاح انٹرنیشنل اسلامک اسکول میں اسلام اور سائنس نمائش کا اہتمام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کو ایڈین کے تمام ڈائریکٹرز اور ایڈین اردو نیوز کی جانب سے آپ تمام کو رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں خبروں پر۔ رمضان المبارک کے مقدس ماہ کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج نماز تراویح ادا کی جائے گی اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ آصفہ کالونی کے مسجد کے امام حافظ مولانا نصیر الدین نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے رمضان المبارک کی اہمیت پر روشنی ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کیا کہ فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تمام نعمتوں کو مکمل کیا۔ اس میں ایک عظیم الشان نعمت رمضان المبارک کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے متعلق فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کو ظاہر کر دیتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو پوری زندگی گزارنے کی ہدایت کا یہ سر چشمہ ہے۔ اور ماہ رمضان سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم حدیث پاک سنتے ہیں ابو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 29 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور رمضان المبارک کے اہتمام کے لیے اور رمضان المبارک کی فضیلت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ یہ ماہ مبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے روزوں کو ہم نے تم پر فرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کی رات کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث اجر و ثواب بنایا۔ اور یہ ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ خیر من الف شہر۔ تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو یہ ماہ مبارک امت کے لیے پورا کا پورا ماہ چاند نظر آنے سے شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک پورا کا پورا ماہ صرف اور صرف عبادت کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ بہت مختصر وقت میں ہم اپنی ضرورتوں کا اہتمام کریں، بازاروں میں صرف اس وقت جائیں، بازار کا رخ اس وقت کریں جب ہمیں اپنی ضرورتوں کا پورا کرنا ہو۔ بلا وجہ بازار میں گھومنا یا بلا وجہ بازار کے رونق بننا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے۔ یہ اس کی راتیں اور اس ماہ مبارک کے تمام دن صرف
اور صرف عبادت کے لیے ہمیں کرنے مختص رکھنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم پوری طرح سے قدر کریں، اس نعمت کی پوری طرح سے قدر کریں، اور اس ماہ مبارک کو غمخواری کے ساتھ، اس ماہ مبارک کو صدقات اور خیرات کے ساتھ، اس ماہ مبارک کو ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے اعتبار سے ہم گزاریں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں کس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ روزے سے متعلق فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تو تقوی کی صفت کو اختیار کرنا اور تقوی والے اعمال کو اختیار کرنا، یہ ہمارا پورے ماہ میں عمل ہونا چاہیے کہ ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اور حقوق العباد یہ ایک ایسا فرض ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے لیے حقوق جس کے حق تلفی کی ہے اس سے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف فرما دیتے ہیں توبہ کرنے پر، لیکن حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس بندے کا حق ہم نے جس کا تلف کیا ہے اس سے ہم معافی نہ مانگے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لہذا نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور یہ جانیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک مغفرت کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ ماہ مبارک آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس ماہ مبارک میں اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ مغفرت اور آگ سے خلاصی یہ ایسے دو عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمائے ہیں کہ آدمی اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے، اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرے کہ مغفرت کا پروانہ وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس اسی مغفرت پر عطا فرمانے والے ہیں کہ جس کی مغفرت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کرم سے جنت الفردوس عطا فرمانے والے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک کی، رمضان الماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں تو ان روزوں میں بھی حرام سے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ افطار حرام سے نہ ہو، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا افطار حرام سے ہو جائے تو پھر فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور افطار مال سے حرام مال سے افطار کیا اس کا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی عبادتوں کو ختم کرنے والی چیز اعمال خبیثہ اور اعمال بد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال بد سے ہماری حفاظت فرمائے، نفس امارہ کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، صبر قدر کی تلاش کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اور ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں ہم پوری طرح سے بے فکر ہو کر عید کی خریداری میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ رات اور یہ عشرہ آخری عشرہ پورا کا پورا عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کے تلاش کی اور اس کے اہتمام کی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح سے شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پنچکی کے علاقے میں مسجد جمیل بیگ میں ہمیشہ گھاٹی کے مریضوں اور رشتہ داروں کے لیے طعام کا نظم کیا جاتا ہے۔ مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مستحقین کے لیے افطار سمیت طعام کا مفت انتظام کیا گیا ہے۔ ایڈین سے بات کرتے ہوئے یہاں کے ذمہ داروں نے مزید معلومات فراہم کی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد جمیل بیگ پچھلے 11 سالوں سے گھاٹی اور دیگر ہاسپٹلس میں مفت کھانے کا نظم کا انتظام کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سحر و افطار کا نظم کیا جا رہا ہے پورے 17 ہاسپٹلس میں، اور گھاٹی سے منسلک مسجد ہے تو مسجد میں بھی ان سحر کا انتظام رہے گا۔ میں آپ سب سے درخواست ہے
इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। कितने रोजाना कितने मरीजों तक ये आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोज़ाना 1800 के करीब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका टाइमिंग वगैरह क्या है? जी शहर का वक्त 3:30 बजे से चालू हो जाएगा सर। इफ्तार का तो इसके अलावा भी और जो दोपहर में आप जैसे सुविधाएं देते हैं आम लोगों को, नहीं वो खाना चालू है सर, क्योंकि जैसे टाइमिंग कैसी रहती है? जी दोपहर का वक्त का जो खाना है वो उसी वक्त पर दायम कायम रहेगा, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा गैर मुस्लिम भाई भी इसमें आते हैं, उनको तकलीफ ना हो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। बीड़ बाईपास रोड रास्ते पर फ्लाई ओवर ब्रिज की ऊंचाई कम होने का सवाल आज कानून साज असेंबली के इजलास में उठाया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए तामीरात आम्मा के वज़ीर रविंद्र चौहान ने कहा कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है और इस मामले को दबाने की कोशिश भी की। संग्राम नगर ओवरब्रिज के नीचे शुरू किया गया खुदाई का काम गलत हो गया है, ऐसी बहस जारी थी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है, ऐसा इल्ज़ाम आयद किया गया था। इसकी वजह से सतारा देवलाई इलाके के शहरियों में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इसके बाद असेंबली में अबू आसिम आज़मी ने ओवरब्रिज की ऊंचाई कम होने का सवाल उठाया था। इसके जवाब में तामीरात आम्मा के वज़ीर रविंद्र चौहान ने कहा कि ये बात सच नहीं है। तहरीरी तौर पर ऐवान में ये बात बताई गई। ये काम खाका तैयार करके मंजूर किया गया है, इसकी तेला ऐवान में दी गई। किसी न किसी वजह से हमेशा बहस में रहने वाले रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने आखिरकार बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। आइंदा कानून साज असेंबली और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए ये एक अहम तब्दीली समझी जा रही है। कन्नड़ के साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने बीआरएस पार्टी में हाल ही में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में ये तकरीब अमल में आई, ऐसी खबर मौसूल हुई है। हर्षवर्धन जाधव ने हैदराबाद में जाकर भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, ऐसी खबर मिली है। जल्द ही चंद्रशेखर राव शहर में इजलास लेंगे और हर्षवर्धन जाधव को अहम जिम्मेदारी देंगे। जाधव की मारिफत पार्टी में तोसी की जाएगी। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब में हर्षवर्धन जाधव ने शिवसेना के चंद्रकांत खैरे के खिलाफ चुनाव में मुकाबला किया था। अब हर्षवर्धन जाधव शिंदे ग्रुप के लिए दर्द सर बन सकते हैं, ऐसी सियासी बहस जारी है। टाउन हॉल से आमखास मैदान फ्लाई ओवर ब्रिज से मुत्तसिल रास्ते का काम 15 लाख रुपये खर्च करके शुरू किया गया है। इस रास्ते के ज़िमन में कारपोरेटर सैयद मतीन ने एडीएन से बात करते हुए मज़ीद मालूमात दी हैं। आज जो है तो धम्मा तो मेरा एक बजट का काम था, तो मैंने कल 3 करोड़ का ऐलान किया था, तो काम आज से स्टार्ट कर दिए। उद्घाटन होते रहेंगे, चलते रहेंगे और काम जल्द से स्टार्ट हो। रमज़ान का महीना लग रहा, तो आसिफा कॉलोनी टाउन हॉल की मेरे वार्ड की एंट्री है, तो आज ये 15 लाख रुपए का जो है तो डामर रोड का काम जो है तो स्टार्ट किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात का मैं इनॉग्रेशन हुआ आज। हमारे हाजी भाई है कॉन्ट्रैक्टर, वो ये काम कर रहे हैं। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सामाजिक न्याय म्हणजे काय आमच्या दर्शकांना सांगा। न्याय, सामाजिक न्याय नेमका कसा असतो हे आज मला समजलं। कालपर्यंत पीएचडी करण्याचं स्वप्न असून सुद्धा फक्त घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे मी पीएचडी करण्याचा विचारच सोडला होता। पण आता महाराष्ट्र शासन पीएचडी आणि एमफिल करणाऱ्यांना देत आहे 31,000 रुपये, सोबतच घरभाडे भत्ता आणि आकस्मिक खर्च सुद्धा। बस अजून काय हवं? महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे माझ्यासारख्या कित्येकांचं पीएचडी आणि एमफिलचं स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे। निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर 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 ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले, चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अख्तरुज़्ज़मान नासिर उर्दू लाइब्रेरी की खस्ता हाली की वजह से
लाइब्रेरी के रूबरू आज जन जागरण कमेटी की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया गया। लॉकडाउन से जो बंद हुई मैगजीनें पूरी की पूरी बंद, और पेपर में भी जो है लॉकडाउन के पहले से कोई 15 साल से इजाफा नहीं हुआ। 15 साल में कोई फर्नीचर नहीं आया, किताबों को दीमक लग गया। अभी आपको बताएंगे ले जाके दीमक सब खा रही हैं। किताबों को दीमक जो है दवा मारना वो नहीं मारे जा रही है। इमरजेंसी में आग लग गई तो इमरजेंसी का आग का इंतज़ाम नहीं, पानी पीने का पेशाब ताहरत का इंतज़ाम नहीं, रात को वॉचमैन नहीं, क्लर्क नहीं, फर्नीचर नहीं 15 साल से। इसके लिए बार बार समझाने के बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। लिहाजा हम आपके सामने देख रहे हैं कचरे की कुंडी। जब घर घर लोग आते कचरा उठाने के लिए तो ये कचरे की कुंडी यहाँ का कौन है? आज भी अपन जो है तो म्यूनसिपाल्टी के दौर में जी रहे क्या? G20 की मीटिंग हुई औरंगाबाद में और कचरे की कुंडी अभी जिंदा है। ये बड़े अफसोस की बात है। सब विदेश के लोग आए 20। आपकी क्या डिमांड है महानगर पालिका? हमारी डिमांड ये है कि इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो तारीखी लाइब्रेरी जिसमें 20,000 के ऊपर किताबें हैं, यहाँ पर फौरी क्लर्क देना चाहिए। यहाँ के जो क्लर्क थे उनका ट्रांसफर जो है सुरक्षा विभाग के अंदर जो है शेख मुख्तार जो थे, मुख्तार खान, उनका कर दिया गया है जो लाइब्रेरी का कोर्स पास है। अब यहाँ पर कोई किताबें देने और लेने के लिए हैंड नहीं है। के लिए मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो किताबें जो भी लगती है या मेरी तदरीस के लिए जो भी किताबें यहाँ पर चाहिए मुझे, वो मुझे वक्त पर मुहैया नहीं होती है। और कभी किताबें होती भी है तो किताबों में बहुत ख़राबी है, किताबें के पेजेस नहीं रहते, किताबों में दीमक रहता है, किताबें टाइम पे नहीं रहती। यहाँ पे कोई बताने के लिए किताबों को कोई अवेलेबल, कोई जेंट्स कोई लेडीज़ कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे कलर का, यहाँ पे एक आदमी का होना, यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गायबाने में कोई भी लेडीज़ जेंट्स आते हैं तो उन्हें वक्त पर किताब मिलना, उन्हें हर चीज़ वक्त पर मुहैया होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कलर भी दीवारों को करे हुआ नहीं है। यहाँ पर कचरा कुंडी है जो बहुत मच्छर और बहुत बदबू यहाँ से आती है। यहाँ पर बैठकर अगर हम पढ़ना भी चाहते हैं, यहाँ पर मुताला भी करना चाहते हैं तो भी हमें यहाँ पर बैठे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी है और यहाँ पर कोई ख़ास इंतज़ाम पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी किताबें होने के बावजूद भी इससे अगर हम इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर पाए और वक्त पर हमें पानी, लाइट और यहाँ की गंदगी साफ़ होने पर हमें नहीं मिली तो इस लाइब्रेरी का यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं है। यहाँ की साफ़ सफाई करना और यहाँ पे क्लर्क रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये हम सब की तरफ से एक ज़रूरी गुजारिश है कि यहाँ पे आप क्लर्क रखें, यहाँ की साफ़ सफाई रखें, यहाँ पे पानी का इंतज़ाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी किताबों को यहाँ पर लाएँ। और बहुत सी नायाब किताबें हैं, कदीम किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं और ये दूसरी जगहों पर मिलती नहीं हैं। लेकिन आज ये जो किताबें हैं, ये किताबें धूल में पड़ी हुई है, दीमक खा रही है और उसके बाद में जो है इतना ये धूल है कि वहाँ पर उसको हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में उसका इंतज़ाम नहीं है, अलमारी नहीं है और उसमें किताबें जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ख़वातीन के लिए जब किताबें देखते हैं तो खुद देखना पड़ता है, खुद लेना पड़ता है और लेने के लिए कोई क्लर्क नहीं है। और वहाँ पर लाइब्रेरी में जो आमतौर पर जो इंतज़ाम होना चाहिए वो इंतज़ाम भी नहीं है। और इसलिए हमारे लिए जो है किताबों का जो है किताबें हासिल करना और किताबें किस तरह से लेना ये कितनी बहुत मुश्किल है। और आज जो है ये मैंने किताब जो है 2-3 साल पहले लिया था, लेकिन यहाँ पर एक बजे के बाद में जो है यहाँ पर आदमी आते हैं, वो भी क्या है क्लास 4th है और क्लास 4th का जो काम है वो ये किताब नहीं ले सकते, इसलिए मैं भी कि ये किताब जमा नहीं कर सका और आज लाया मैं। लेकिन यहाँ पर आज भी जो है कोई क्लर्क नहीं है और किताब लेने का इंतज़ाम नहीं है। माह रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही 50 से भी ज़ायद अक़साम के पेन खजूर शहर में मुहैया है। चेलीपुरा में सरताज किराना स्टोर में रोज़ा इफ्तार के लिए पेन खजूर और साथ ही इससे मुंसलिक तमाम अशिया मुहैया की गई है। जैसा कि 3000 के सामान पे गिफ्ट चला पहले, जैसा वाटर बॉटल चली, उसके बाद में टिफ़िन बॉक्स चला, वहाँ से निकलने के बाद अभी रॉयल्टी पॉइंट चल रहा है। जैसा कि अभी आप हर प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर आपको पॉइंट्स की स्कीम है, वो उन्होंने सामान ले लेना, पॉइंट्स रिडीम कर लेना। अच्छा, तो इसमें क्या है, डिस्काउंट नहीं है? आप क्या डिस्काउंट भी है ना, वो कितना % दे रहे हैं आप? जैसा कि हम मिनिमम 6% से हमारा डिस्काउंट चालू है। और आपकी सरताज ट्रेडिंग कंपनी में कुछ कंपनियों के भी स्टॉल लगे हैं? हाँ, कंपनियों के तकरीबन हमारे पास में 20 कंपनियों के स्टॉल हैं। जैसा कि चाय पत्ती वाले हो गए, शरबत वाले हो गए, वहाँ से निकलने के बाद में ऑयल वाले हो गए, तो वो जो है अपन उनको MRP से ज़्यादा कम देने की कोशिश करते हैं कस्टमर। शरबतों में क्या क्या है? शरबत में तकरीबन मेरे पास में 40 से 50 वेराइटी अवेलेबल है। क्वालिटी सब लेते, चावल ये वो खजूर सब लेते हैं। किराना सामान भी? किराना सामान यहाँ से लेते हैं। किराना सामान कैसा है यहाँ पर? यहाँ अच्छा है, रिजनेबल रेट में है, भाव अच्छे है। सब गर्म मसाले का जोर है, पूरा बिरयानी हो, चिकन बिरयानी हो, मटन बिरयानी हो,
वो सब गरम मसाले के ऊपर डिपेंड रहता है। जी दाना है, बिरयानी के लिए चावल भी लिए शायद चांद तारा लिए। चांद तारा। तो क्वालिटी कैसी है आज की और रेट कैसे है? रेट भी बराबर है। तो आप कितने साल से आते हैं यहाँ पर खरीदी? हम ये पहली बार आए। अल फलाह इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में इस्लाम और साइंस की नुमाइश का अहतमाम किया गया। इस नुमाइश में तलबा ने पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लेते हुए अपने फ़नून पेश किए। अल फलाह इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में इस्लाम और साइंस नुमाइश का अहतमाम किया गया था। इस नुमाइश का इफ्तिताह सोहेल अहमद और फजल अहमद के हाथों अमल में आया। स्कूल के तमाम तलबा व तालिबात ने मनसूबाबंद तरीके से नुमाइश में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इसी तरह से बेहतरीन मॉडल पेश किए गए। असातिज़ा ने तलबा का ताउन किया। इसी तरह सरपरस्त ने अहम रोल अदा किया। स्कूल की सदर मौल्लिमा सबा जबीन और तमाम असातिज़ा ने तमाम तलबा व तालिबात की सताइश की। ये नुमाइश जोश व खरोश के माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। मैडम फोन कर रहे तो आगे क्या होगा? रुको हाँ बोलो बेटा। आई एम सबा जबीन, मेरा नाम सबा जबीन है। मैं अल फलाह इस्लामिक स्कूल की हेड मास्टर प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। आज हमारे स्कूल में इवेंट हुआ था। अल फलाह इस्लामिक स्कूल का इवेंट था इस्लामिक फेयर, जिसमें एग्ज़िबिशन था जो कि और एग्ज़िबिशन में हमारे पास बच्चों ने बताए थे इस्लामिक थीम से लेकर साइंस की थीम तक, जिसके चीफ गेस्ट थे मिस्टर सोहेल अहमद सर, मिस्टर फजल अहमद सर, और जिनके गाइडेंस के थ्रू, जिनके सपोर्ट के थ्रू आज हमारे पास में जो प्रोग्राम हुआ वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत प्यारा प्रोग्राम हुआ। टीचर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे तमाम स्टूडेंट्स को मॉडल्स बनाने से लेके, उनको एक्सप्लेन करने से लेके, उनको प्रेजेंट करने तक के सारा हमारे टीचर्स का बहुत अच्छा इसमें योगदान रहा। टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स, जो मॉडल्स बच्चों ने प्रिपेयर करके लेकर आए, ये जो मॉडल्स बच्चों ने बनाकर लेकर आए, उसमें उनकी हेल्प उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा की। मैं थैंक करती हूँ सारे पेरेंट्स को, सारे ऑल माई स्टाफ को, मेरे पूरे तमाम स्टाफ को। और जो थीम थी हमारे स्कूल के आज के एग्जीबिशन की, जो थीम थी वो थी कि साइंस और इस्लाम। जो आज साइंस एक्सप्लेन कर रही है, जो आज साइंस इन्वेंट कर रही है, जो वही चीज़ जो हमारे इस्लाम में बहुत पहले ही बता दी गई थी, उसके थ्रू वो थीम को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने आज प्रोग्राम किए, हमारे बच्चों ने वो उस मॉडल्स को प्रेजेंट किए साइंस के नज़रिए से भी और इस्लाम के नज़रिए से भी। इस्लाम में जो बेनिफिट्स पहले बता दिए गए थे, आज वो साइंस उसको प्रूफ कर रही है। ये चीज़ें हमारे बच्चों ने एक मॉडल के थ्रू सारे प्रेजेंट किए और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह के समाजी और सकाफती कारनामे इस उन्वान के तहत मुज़ाकरे का अहतमाम किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह स्टडी मरकज़ की जानिब से शहीद दिन के ज़िम्न में शहीद भगत सिंह के सकाफती और समाजी कारनामे इस उन्वान पर कौमी इजलास का इफ्तिताह अमल में आया। प्रिंसिपल डॉक्टर शिवाजी देवड़े के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इसके अलावा मुज़ाकरे का भी एहतमाम किया गया था।
किती समजून घ्यायचा हे जास्त महत्वाचं आहे. म्हणजे खरं म्हणजे आजचा काळ तर असा आहे सैरभर झालेला आमच्या युवकांच्या दृष्टीनं की त्याचं एकच वाक्य असतं की मला काहीच करावं वाटत नाही. खरं म्हणजे ही भगत सिंगांची प्रेरणा आहे का? हे प्रचंड नैराश्य आहे. आणि आमचा युवक असा गुरफटत चाललेला आहे की त्याला भगतसिंगांचा सिनेमा एका वेळी आवडणार नाही, पण तो पहिले 2 वर्ष सैराटमध्ये गुरफटलेला असतो. ते संपत नाही तर कुठेतरी चंद्रमुखी है ना त्याच्या समोर उभी राहते आणि नंतर त्याचं हे निराशावादी वाक्य आपल्याला पाहायला मिळते की आता मला काहीच करावं लागतं. हा एखाद्या मित्राच्या वरातीमध्ये नाचत असताना मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय असं कदाचित तो नाचण्याच्या धुंदीमध्ये म्हणत असावा. भगतसिंग समजून घेत असताना वेगवेगळ्या पातळीवर आपण तो समजून घेतला पाहिजे. आणि मला या गोष्टीचा आनंद आहे. मला बऱ्याच दिवसापासून हे चर्चासत्र घ्यायचं होतं आणि ते मुद्दामून घ्यायचं होतं. त्याचं एक कारण हे खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अख्तरुज़्ज़मान नासिर लाइब्रेरी की खस्ता हाली पर लाइब्रेरी के रूबरू किया गया शदीद एहतजाज। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ बाजार में खजूर के अक़साम मुहैया। आज से तरावी के साथ माह सय्याम का आगाज। और अल-फलाह इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में इस्लाम और साइंस नुमाइश का एहतमाम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।